एमए सेकेंड सेमेस्टर मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम की क्लास में आज सभी विद्यार्थियों का पुनः बहुत स्वागत है। कल हमने आपसे बात किया था अपने वीडियो लेक्चर में अबाउट द पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति के विषय में हमने आपसे बात किया था। और इन माय लेक्चर आई हैड ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट पॉलिटिकल कल्चर इज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, what is the relationship between culture and political culture, how culture influences political culture, and in turn how political culture counter influences culture। कल के विषय में हमने आपसे ये सारी बातें करी थी कि संस्कृति क्या है, राजनीतिक संस्कृति क्या है, राजनीतिक संस्कृति संस्कृति को कैसे प्रभावित करती है और संस्कृति राजनीतिक संस्कृति को कैसे प्रभावित करती है। इन सारे विषयों पर हमने आपसे बात किया था। आज उसी के आगे कुछ और बात करते हैं। लेट अस नाउ टॉक समथिंग फर्दर ऑन दिस टॉपिक। और कल जो बात किया था उसके अगली जो बात अब आएगी इस विषय में वो ये है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, उसके तत्व क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। तो जब when we talk about the culture, the characteristics of culture, so the first characteristic is that it is basically an abstract concept. Political culture is basically an abstract concept. अर्थात राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त धारणा है। देखिए दो शब्द होते हैं, एक मूर्त होता है और दूसरा अमूर्त होता है। There are two words, one is the concrete and the other is the abstract. Abstract and non-abstract, or in other words you can say abstract and concrete. So this is the abstract concept. Political culture is basically what we call it as, we cannot see what political culture is. That is not visible through our eyes. At best we can only feel, we can realize, we can study, we can discuss, we can analyze that this is culture, what we are seeing in the society, and based on that when we try to analyze, then we say that this is the culture, this is the political culture. तो राजनीतिक संस्कृति हमने कहा ये अमूर्त है। it cannot be seen as such, it can only be felt, it can only be analyzed. राजनीतिक संस्कृति को हम देख नहीं सकते हैं, इस सेंस में नहीं देख सकते हैं कि कोई वस्तु है, जैसे हम कहते हैं हाँ ये वस्तु है, ये राजनीतिक संस्कृति है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हम राजनीतिक संस्कृति की व्याख्या कर सकते हैं, हम उसकी आलोचना या समालोचना कर सकते हैं, बट वी कैनॉट सिंपली say that this is political culture, that this object is political culture. So in that sense we say that political culture is basically an abstract concept. Number second is that a political culture comprises of so many variables. That is, political culture is composed of many factors. It is not just on the basis of only one or two factors. We simply cannot analyze that this is political culture or this is culture. So in order to evaluate what culture is, we have to take into cognizance several factors, and that factors I had already told you yesterday. That is, our thinking pattern, our thought process, our way of living, our habits, our values, our orientations or preferences or choices for something, our inclinations for some different things. तो इन सारी चीज़ों को जहाँ पर हम कहते हैं ये हमारे मूल्य हैं, ये हमारी अभिवृत्तियाँ हैं, अभिवृत्ति से तात्पर्य ये हमारी रुचि है या हमारी ये सोचने की प्रक्रिया है, हमारा ये मंतव्य है, ये सब राजनीतिक संस्कृति को बनाने वाले तत्व हैं। और साथ ही साथ हमने कल ये भी बताया था द एनवायरनमेंट दैट इज़ देयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो पर्यावरण है वो भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में बहुत बड़ा कारक होता है। And environment definitely we can see, we can feel, and that goes into the constitution or the composition of the political culture. जैसे Montesquieu कहता है, in cold countries there is a different culture, whereas in hot countries, in tropical countries there is a different kind of a culture. और Montesquieu ने तो Spirit of Laws जो उसकी किताब है, he has explained at length how geography, how climate,
influences the culture of a country, and that is the environment. And when we use the word the weather or the surroundings, around us, they are all, we can say, they are the objects of the environment. And environment does influence our culture. It influences so many things, and therefore Montesquieu has elaborated quite at length what is the impact of the environment on the political culture of a nation or a society. So this was the second, I would say, this is the second characteristic. And the third, we can say that when I told you that it is comprised of so many things, है ना? And the third thing is that this political culture is basically dynamic. It is dynamic in character, अर्थात राजनीतिक संस्कृति गतिशील होती है. गतिशील से तात्पर्य क्या है? What is the concept of, what is the meaning of dynamic? It means it is not static, it is not fixed, it is not something that once a culture of a society comes into existence, it will always remain the same. ऐसा नहीं हो सकता. एक बार जो संस्कृति किसी राज्य की बन जाती, किसी देश या समाज की बन जाती है, वो हमेशा वैसी ही संस्कृति रहेगी, ऐसा नहीं होता है. कल्चर डज अंडरगो चेंज एंड फर्दर चेंजेस. संस्कृति में, समाज की संस्कृति में निरंतर बदलाव आता रहता है. बिकॉज विद द चेंज इन द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, people's way of thinking, people's way of living, their thought processes, their choices or preferences, they also undergo corresponding change. And the corresponding changes that are witnessed in various spheres of human life or in the various walks of the society, that brings about a consequent change in the culture of a society. एक समाज में हमने कहा निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं. जैसे मानव का जीवन स्थिर नहीं रहता है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है. सो डज अबाउट द नेचर. प्रकृति भी एक स्थिर नहीं रहती है. आज बहुत गर्मी पड़ रही है तो कल कम गर्म होगी, परसों उसके बाद और अच्छा मौसम होगा, है ना. दिस इज वी से दिस इज द चेंज इन द नेचर. दीज आर द चेंजेस इन द नेचर दैट इज हैपनिंग. देयरफॉर जस्ट लाइक when we say that change is the law of the nature, अर्थात परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो इसका तात्पर्य है कि that change is also the rule of culture. That is, culture and change, they also go hand in hand. अर्थात संस्कृति और परिवर्तन दोनों साथ साथ चलते हैं, और इसीलिए ये फिक्स नहीं रहते हैं. आज जो हमारे पहले, जो कुछ सालों पहले थे जो संस्कृति थी देश की, आज थोड़ा सा परिवर्तन हुआ होगा उसमें. पहले की जो हमारी संस्कृति थी बहुत भिन्न संस्कृति थी, जब उसमें मूल्यों का बहुत बड़ा स्थान था. व्हेन एथिक्स, व्हेन आइडियल्स, व्हेन वैल्यूज यूज्ड टू प्ले अ बिग पार्ट और अ बिग रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, in the upliftment or in the forward movement of the society, there was a huge role of values and ethics. लेकिन आज के समय में हम लोग कहते हैं कि ये मूल्य, ये आदर्श, ये नैतिकता आज बहुत संकुचित हो गई है. और जैसे जैसे इसका पतन हुआ है मूल्यों का, नैतिकता का, चरित्र का, वैसे वैसे हमारी संस्कृति में भी परिवर्तन होता चला गया है. Therefore it is said that culture is always in a state of change. It is always undergoing some or the other kind of change. So therefore we have to take into consideration these three factors whenever we are discussing about the characteristics of political culture. तो पहली बात क्या हो गई सॉरी पॉलिटिकल कल्चर की पहली बात ये हो गई कि ये एक अमूर्त एक विषय है. अमूर्त एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है. दूसरी बात हमने बताया आपको कि दैट पॉलिटिकल कल्चर कंप्राइजेस सो मेनी थिंग्स. इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, आई मीन इट इनकम्पासेस सेवरल फैक्टर्स, है ना. बहुत सारी चीज़ें मिलकर ही राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होती है. और तीसरी बात जो हमने कहा, राजनीतिक संस्कृति सदैव एक सी नहीं रहती है, उसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है ना. तो पहले हम लोग कहते थे हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस हुआ करता था, प्राचीन समय में शासन था, अच्छा शासन था, सुशासन था, है ना. लेकिन आज के समय में हम कहते हैं कि हमारे शासन में कुछ कमी आ गई है. मैनी टाइम्स वी आर क्रिटिसाइजिंग आवर ओन गवर्नेंस, आवर ओन एडमिनिस्ट्रेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट that we have elected through our popular vote
थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, अर्थात जिस सरकार को हम चुनते हैं अपने मताधिकार के द्वारा, उसी सरकार की हम घोर आलोचना भी करते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ है? इसका तात्पर्य यह है कि जैसे मूल्यों में पहले का मूल्य क्या थे, आज के मूल्य क्या थे, उसमें परिवर्तन होता जाता है, परिवर्तन होता रहता है, और इसके वजह से संस्कृति में भी परिवर्तन होता है। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा जब भी हम राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। अब इसके बाद अगली बात ये आती है कि What are the foundations of political culture? What are the principal foundations of political culture? अर्थात राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं? What are the principal, we can say, factors or the foundations of political culture? अर्थात राजनीतिक संस्कृति के आधार क्या है, उसका आधार क्या है, अर्थात किस आधार पर राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। अर्थात आज की जो राजनीतिक संस्कृति है, क्या उसके फाउंडेशन में कुछ फैक्टर्स हैं, उसके फाउंडेशन में कुछ है, कोई खास बात है? यस, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी पॉलिटिकल कल्चर कैरी सर्टेन डिटर्मिनिंग फैक्टर्स। प्रत्येक राजनीतिक संस्कृति के पीछे कुछ ना कुछ ठोस आपके लिए कारक अवश्य होते हैं, कुछ आधार अवश्य होते हैं। और पहला आधार जिसे हम कहते हैं द हिस्टोरिकल फाउंडेशन। द हिस्टोरिकल फाउंडेशन अर्थात राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दिया जाता है किसी देश की ऐतिहासिक विरासत के द्वारा। दैट इज कॉल्ड एज अ हिस्टोरिकल फाउंडेशन, अर्थात ऐतिहासिक आधार। देखिए, हमने कल भी आपको बताया था कि दैट द कल्चर ऑफ अ कंट्री गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल पास्ट। हमारे देश का या किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति की पृष्ठभूमि में इतिहास बहुत बड़ा कारक होता है। अगर हम यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस 2 कंट्रीज़ के एग्जाम्पल लें, इस बात को एक्सप्लेन किया गया है, सिडनी वर्मा ने किया है, अपनी पुस्तक में किया है उसने, कंपैरेटिव पॉलिटिकल कल्चर। और जब वो सिडनी वर्मा इस चीज़ को डिस्कस करता है कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में क्या मुख्य आधार हैं, तो यहाँ वो बताता है जब हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो अलग अलग ऐतिहासिक विरासतें अलग अलग प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती हैं। दैट इज़ डिफरेंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस create different kinds of political culture, and as an example he picks up 2 countries। उदाहरण के तौर पर वो दो देशों को के बारे में बात करता है। The first is England or the UK, and the second is France। England and France, they are the 2 countries about which he is discussing। इंग्लैंड में कहता है कि the political culture has been very different from ages, from centuries together। इंग्लैंड की राजनीतिक संस्कृति में वर्षों से अर्थात हजारों वर्षों से एक भिन्न प्रकार का हम कह सकते हैं एक वातावरण देखा गया है। उसका इतिहास एक बहुत भिन्न प्रकार का रहा है इंग्लैंड का। और भिन्न किस प्रकार का है? दे हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड देयर हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, दे हैव ऑलवेज वैल्यूड देयर हिस्टोरिकल पास्ट। इंग्लैंड के लोगों ने अपनी ऐतिहासिक विरासत को, अपनी ऐतिहासिक धरोहर को हमेशा सम्मान दिया है। दे हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड द पास्ट ग्लोरी। जो उनका पुरातन जो गौरव था, हमेशा उन्होंने उसको अक्षुण्ण बनाकर रखा, उसको सम्मान दिया, सम्मान किया, और उस गौरवशाली परंपरा जिसको वो मानते थे हमारे देश की परंपरा बहुत गौरवशाली है, और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। विद द रिजल्ट दे नेवर played havoc with their own country। They never indulged in destruction or violence insofar as the historical past is related। बल्कि उन्होंने एक तरह से वर्शिप ही किया। एडमंड बर्क, अगर हम पूरी बात देखें, अगर उसका इतिहास पढ़ें या उसका पूरा विचार हम पढ़ें, तो कैसे वो बताता है कि किस प्रकार से इंग्लैंड ने अपनी धरोहर को इतना सम्मान दिया, हजारों वर्ष पुरानी धरोहर को इतना सम्मान दिया, और आज वही धरोहर, ऐतिहासिक विरासत इंग्लैंड को मजबूत बनाती है। Therefore, history cannot be separated from the political culture।
जब भी इंग्लैंड के राजनीतिक संस्कृति के बारे में बात होगी तो हमेशा उसकी पुरातन विरासत के बारे में ज़रूर बात होती है। दे हैव प्रिजर्व देयर ओल्ड मेमोरीज, देयर हिस्टोरिकल मेमोरीज। जो उनके यहाँ मोनार्की का बहुत लंबा दौर चला, जो उनके यहाँ राजतंत्र का एक लंबा दौर चला, उन्होंने उसको सहेज के रखा। जैसा भी राजतंत्र था, अगर वो आतताई तंत्र भी था, इवन दैट मोनार्की was tyrannical in character, still they preserved that monarchy. They never destroyed, they never destructed their own historical past. और इसलिए उनकी आज राजनीतिक संस्कृति, इंग्लैंड की राजनीतिक संस्कृति एक भिन्न प्रकार की संस्कृति है। ऐसी संस्कृति जो राष्ट्रीय धरोहर को एक अमूल्य वस्तु के रूप में देखती है। Now as compared to England, we have the example of फ्रांस। सिडनी वर्मा ने फ्रांस के बारे में भी कहा, कहता है एज अपोज टू इंग्लैंड, फ्रांस हैज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पीपल ऑफ फ्रांस दे वर वेरी मच डिससेटिस्फाइड विद देयर एंशिएंट पास्ट और विद द हिस्टोरिकल पास्ट। एंशिएंट तो ना कहें, एंशिएंट तो बहुत पुराना चला जाएगा, बट हिस्टोरिकल पास्ट। द फ्रेंच मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव्ड दे इनहेरिटेड अ बैड पास्ट, कि उन्होंने एक बुरे ऐतिहासिक विरासत को प्राप्त किया है। दैट वॉज फुल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दैट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय सेपरेशन ऑफ पीपल, देयर वॉज अ ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड, एंड देयरफॉर they considered that this kind of historical traditions need not be preserved. फ्रांस के लोगों का ये विचार था कि फ्रांस का अतीत गौरवशाली तो बहुत दूर की बात है, सामान्य भी नहीं था। जो शासक था वो आतताई था अधिकांश, और उन्होंने लोगों के साथ अन्याय किया, लोगों के साथ अत्याचार किया, शोषण किया, अधिकांश फ्रांस के शासकों के द्वारा। सो दे हैड लॉट ऑफ एंगर अगेंस्ट देयर ओन रूलर्स, अगेंस्ट द पास्ट मोनार्कीज। और इसलिए इन द ईयर 1789 देयर वाज अ फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन occurred in the year 1789, and in that revolution the French revolutionaries destroyed a large part of their ancient of their historical past. They tried to erase the memories of the past French society or the past French monarchy. They vandalized, they destroyed the palaces of the monarchs, the objects, the artifacts that belonged to the royal families that were destroyed by the revolutionaries, because they never wanted to spare anything of that exploitative regime. In their own words, that exploitative regime shouldn't be getting the right to be preserved in people's memories. ये जो क्रांतिकारी तो उनका मानना था, ये जितने आतताई राजतंत्र थे उनको इस बात का कोई अधिकार नहीं था कि उनको आगे आने वाली पीढ़ियाँ सम्मान से देखें या उनकी धरोहर को वो देखें, उनकी पुरानी विरासत को देखें, क्योंकि वो इस लायक नहीं थे, क्रांतिकारियों का मानना था। और इसलिए उन्होंने काफ़ी हद तक अपने परंपरा से जो चली आ रही थी, जो भी वहाँ राजतंत्र था, जो शासकों का वहाँ व्यवस्था थी, उस सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अधिकांश इस प्रकार की व्यवस्थाओं को उन्होंने विध्वंस कर दिया। और इसलिए ये माना जाता है, वर्मा ने इसी बात को कहा कि इतिहास एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो जिस आधार पर हमारी संस्कृति का निर्माण होता है। नाउ व्हाट इज़ द केस ऑफ इंडिया? इफ़ यू वांट टू discuss something about India, then we can say that India's historical past has always been eulogized. We never disrespected our ancient past or our historical past.
भारत में हम लोगों ने कभी भी अपने पुरातन इतिहास को अवमानना की दृष्टि से नहीं देखा, निरादर की दृष्टि से नहीं देखा। वी ऑलवेज रिस्पेक्टेड the past, we can say the past history is always past anyway। जो हमारे यहाँ इतिहास जो स्थापित हुआ है, जो बीत गया समय, वी नेवर डिसरिस्पेक्टेड। आलोचना करना एक बात है, लेकिन हे दृष्टि से देखना, टू लुक डाउन अपॉन आवर ओन सिस्टम्स इज समथिंग परहैप्स नॉट वैलिड इन द इंडियन सोसाइटी। ये हमारे यहाँ की ये परंपरा नहीं रही है, कभी भी इस तरह से नहीं देखा गया है। आलोचना हमने बताया कि इट इज़ नॉट दैट when you are discussing the past of any country or the history of any country, you are going to appreciate and admire everything that whatever happened in our ancient past. But at the same time, it also does not mean that everything was, if we are not going to admire everything, it is also that we are not going to condemn everything. We are going to be selective, and we will be evaluating our historical past on the basis of merit। जो अच्छी बात होगी हमारे पुरातन इतिहास की, हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, और जो कुछ उचित नहीं प्रतीत होती है तो उसकी आलोचना भी करेंगे। सो देयरफॉर इन इंडिया वी हैव अ पॉलिटिकल कल्चर which gives lot of respect to our ancient past or to the past history of this country, whether it is the issue of the foreign policy, whether it is the traditions that we have inherited, whether it is the conventions that today have become part and parcel of the Indian Constitution, not a large body of conventions we have inherited, but whatever conventions we have incorporated in our Constitution does prove that we respect our customs, our usages, our practices, and our conventions. And that is very much also true with regard to England. तो इसलिए भारत की भी ये एक राजनीतिक संस्कृति रही है कि वो अपने पुरातन इतिहास को सम्मान की दृष्टि से देखता है, और केवल देखते नहीं, उससे बहुत कुछ सीखने का भी प्रयास करता है। बहुत अच्छी जो बातें हैं हमारे इतिहास के बारे में, हमने उसको अपने वर्तमान में भी उसको सम्मानजनक स्थान दिया है, अपने जीवन में, समाज के जीवन में, और हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी उन चीज़ों को स्थान दिया गया है। सो दिस इज़ what we say that historical foundation. The number 2 is what we call it as geography as a foundation. Geographical foundation, not geographical foundation but geography as a foundation. अर्थात भूगोल के रूप में आधार, अर्थात राजनीतिक संस्कृति का भूगोल के रूप में आधार, दैट इज ज्योग्राफी। अभी हमने आपसे बताया था दैट ज्योग्राफी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिटिकल कल्चर ऑफ अ कंट्री। अभी हमने आपको मॉन्टेस्क्यू के बारे में बताया था, एंड मॉन्टेस्क्यू की बातें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट try to know what Montesquieu said more on this topic. He said, he observed, although his observations may not be correct in today's time, but definitely he did give some very important observations regarding the impact of environment, the impact of weather, the impact of topography or location on the political culture of a nation. For example, he said that the people of cold countries, they are more active, they are more agile, they are more energetic as compared to the people of the hot countries or tropical countries. They are bit, we can say, they are bit slow, they are sluggish, they are not so much full of enthusiasm or energy. मॉन्टेस्क्यू इसी बात को कहता है कि जो ठंडे देश के लोग होते हैं वो अधिक ऊर्जावान होते हैं, अधिक उत्साही होते हैं, और इसलिए their contribution can be seen very visibly, very clearly in the historical, we can say, in the history of that nation.
और इसका ठीक विपरीत गर्म देशों के जो लोग होते हैं, वहाँ के लोग जो हैं, चूँकि गर्मी के कारण व्यक्ति बहुत आप कह लिए कि उतने ऊर्जावान नहीं हो पाते हैं। Therefore they get slow, sluggish. वो मंथर गति से चलते हैं, धीरे धीरे फिर चलते हैं, because the climate is not supportive, and therefore there is a different kind of political culture. So climate plays a very important role insofar as a political culture is concerned. इसके अन्यत्र भी उसने ये भी कहा, इसके अलावा भी ये उसने कहा मोंटेस्क्यू ने, countries not having very big geography, जिन देशों की बहुत बड़ा ज्योग्राफी नहीं है, भूगोल नहीं भी है, बहुत बड़ा आकार नहीं है, साइज नहीं है, they are more compact, they are stronger, there is less problem of governance in those countries, they are by and large they are homogeneous countries. And in support of his contention he cites the example of Europe. यूरोप का वो उदाहरण देता है और वो ये कहता है कि यूरोप के जो देश है, छोटे छोटे देश हैं, दे आर नॉट एज बिग एज मेनी ऑफ द एशियन कंट्रीज और दैट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज। एशियाई देशों के समान वो बड़े बड़े देश नहीं होते हैं, ना जैसे अफ्रीका में भी कुछ देश काफ़ी बड़े हैं, उनके समान उतने बड़े नहीं होते हैं यूरोप के देश। लेकिन उसका मानना है कि जो छोटे देश होते हैं उनका अपना अलग महत्व है। दे हैव ए कॉम्पैक्ट पॉलिटिकल सिस्टम, उनकी राजनीतिक व्यवस्था बहुत संगठित होती है और अधिकांश जो उस देश की जनता होती है वो होमोजीनियस होती है, यानी सजातीय होती है, एक प्रकार की जनसंख्या होती है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मिश्रित होगी जनसंख्या, थोड़ा बहुत तो मिश्रण होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज उसका मानना था, चूँकि उसने यूरोप को ऑब्जर्व किया था। Since he was a European, he was a French, and most of the times he was looking at his own country or countries around his own country. Therefore, he came to the opinion that these European countries, they are middle-sized countries or small countries. They are having a homogeneous kind of a population, and therefore they have no problem of governance. There is better understanding among people insofar as the political system is concerned. छोटे देश हैं, सजाती देश हैं, एक ही भाषा बोलने वाले लोग हैं, एक ही नस्ल के लोग हैं, इसलिए वहाँ पर शासन को लेकर कोई विशेष समस्या नहीं होती है। और इसलिए जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही सजग है, सतर्क है, दैट इज़ मच मोर रिस्पॉन्सिव, देयर इज़ लेस ऑफ करप्शन, there is less of dissension, there is less of dissatisfaction in the political system, because their population is quite homogeneous, having the same kind of language, by and large having the same kind of living standard, and therefore this gives strength to the political system. Now, as compared to the countries of Asia or other countries belonging to other continents, he was of the opinion that these are big size countries. ये बड़े बड़े देश होते हैं, बड़े आकार वाले देश होते हैं। अब चाहे वो चाइना का हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, या ऑस्ट्रेलिया, तो खैर एशिया का पार्ट नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा है। लेकिन खैर एशिया के जो देश हैं उसका ये मानना है कि बहुत बड़े बड़े देश होते हैं, भौगोलिक आकार उनका काफ़ी बड़ा है, और इस कारण से वहाँ की जनता भी जो यानी जनसंख्या भी बहुत विशाल संख्या है जनता की। तो जनसंख्या, दैट इज़ पॉपुलेशन इज़ मैसिव, एंड दैट पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो नॉट होमोजीनियस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इट इज़ हेट्रोजीनियस। वो सजातीय नहीं है बल्कि वो विजातीय है। दैट इज़ पीपल ऑफ मेनी नेशनलिटीज़ may be living in that country. People may be flocking to that country from the surrounding areas or from the surrounding countries, and that brings about, you can say, differences in the country. That gives a different shape to the society. समाज को एक दूसरे प्रकार का एक स्वरूप मिलता है। मिश्रित या अनेक प्रकार के राष्ट्रों के लोग वहाँ रहते हैं। और जहाँ ऐसा होता है, therefore
clashes are bound to occur. If not clashes, definitely internal contradictions are bound to occur. And he says that this definitely is not good for the health of the political system. राजनीतिक व्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जिस आज हम कहते हैं मल्टीकल्चरल कंट्रीज, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, ये सारी जितने शब्द हैं ये सब भारत के संदर्भ में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। ऐसे तो कनाडा में भी है, मल्टीकल्चरलिज्म है, द पॉलिसी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, लेकिन वहाँ पर मल्टीकल्चरल जो सोसाइटी है भी, जो बहुसांस्कृतिक समाज है, वो भारत का बहुत छोटे आकार है। वहाँ पर तो जितनी विजातीयता यहाँ पर, जितना डाइवर्सिटी यहाँ पर है, किसी भी तरह से हम देख लें उतना कहीं भी नहीं है। और इस वजह से भूगोल का एक अपना महत्व हो जाता है किसी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में, और ऐसे देशों को ज़्यादा टॉलरेंट होना पड़ता है। आधुनिक जो शोधकर्ता हैं और साथ साथ सिडनी वर्बा, आमंड, पावल, ये जितने भी हैं विचारक हैं, उनका मानना है कि जैसी आपका समाज होगा, जितना ज़्यादा हेट्रोजेनिटी होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी राजनीतिक व्यवस्था को स्ट्रांग होना होगा। जो शॉक्स होते हैं, करंट्स होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने का। और ये भारत में तो हम देख ही रहे हैं। वी हैव वास्ट नंबर्स ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, religion, different kind of groups, and that creates pressure on the political system। और इसलिए वो राजनीतिक संस्कृति को भी उसी प्रकार का बनाने के लिए उसी दिशा में मुड़ जाते हैं, वैसी राजनीतिक संस्कृति बनती है। ठीक, तो भूगोल एक आधार हो गया। तीसरा आधार जिसे हम कहते हैं द जनरल कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, किसी समाज की सामान्य संस्कृति, द जनरल कल्चर ऑफ अ सोसाइटी। अब देखिए, किसी समाज की जो सामान्य संस्कृति होती है, दैट ऑल्सो गोस इनटू द फाउंडेशंस ऑफ अ पॉलिटिकल कल्चर। यानी सामान्य संस्कृति क्या है, जैसे अभी हमने बताया इंग्लैंड की सामान्य संस्कृति क्या है, हमारे यहाँ की क्या है, फ्रांस की क्या है, ये सामान्य संस्कृति के उदाहरण हैं। भारत का एक जनरल कल्चर यही है, वसुधैव कुटुंबकम, दैट द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। This country has always regarded the whole world as a small family. And along with this Vasudhaiva Kutumbakam, we also believe in the phrase Athithi Devo Bhav. Athithi Devo Bhav अर्थात the guest is our God. The guest is our God अर्थात जब हमने अपने देश को दुनिया का एक स्मॉल विलेज मान लिया, एक परिवार मान लिया, हमने अपने देश को माना, ये पूरी दुनिया को अगर हमने माना कि एक परिवार के समान एक छोटा सा कुटुंब है, तो उस कुटुंब में जो भी कोई आएगा बाहर से, वो सब हमारे लिए जो अतिथि होगा वो ईश्वर के तुल्य होगा, ईश्वर समान होगा। ये भारत की परंपरा रही है, संस्कृति रही है। तो इसीलिए देखिए, हमारे यहाँ जब कोई मेहमान किसी के घर जाता है, ही इज़ गिवन लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। इन फैक्ट समटाइम दिस रिस्पेक्ट क्रॉसेस ओवर टू बीइंग ऑनर्ड। कभी कभी ये आदर सम्मान तो बिल्कुल ये सम्मान की दिशा में चला जाता है, इतना ज़्यादा आदर किया जाता है कि उसको आपके लिए ऑनर तक का उसको हम कहते हैं, इसको ऑनर करना चाहिए, उसको अतिशय उसका सम्मान होना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि अतिथि को ईश्वर के रूप में देखा गया है। तो ये हमारे देश की सामान्य संस्कृति रही है। हमारे देश की सामान्य संस्कृति ये भी रही है टू हैव रिस्पेक्ट फॉर द फैमिली, टू हैव रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, टू हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी लिविंग ऑब्जेक्ट इन द सोसाइटी। तो जो सामान्य संस्कृति है किसी समाज की, जो वर्षों से चली आ रही है, पुराने समय से चली आ रही है, दैट ऑल्सो शेप्स द पॉलिटिकल कल्चर। और इसीलिए हमारे पॉलिटिकल कल्चर में आपने देखा होगा एल्डरली सिटीजन्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सारे मेजर्स उठाए गए हैं, इन सो फार एज their rights, their entitlements, their safe living, their sound health, everything, whatever is concerned with the senior citizens. Lot of things have been done by the political system because we regard our senior citizens
as a valued part and parcel of the society. अब आप इंग्लैंड में अगर जाइए, फ्रांस में जाइए, पश्चिम के देशों में जाइए, तो वहाँ की तो संस्कृति बहुत अलग है। वहाँ पर तो बच्चा 12, 13 या 14 साल का होता है, वो अपने घर परिवार से अलग हो जाता है, उसका अपना एक अलग जीवन हो जाता है। He doesn't remain then tied down by the family. For him, family is not an object of worship. जब तक वो छोटा था, परिवार के संरक्षण की आवश्यकता थी, तब तक तो ठीक था, परिवार was very good. But the moment that requirement is over and the moment the young generation is able to find his or her friends outside the house, that become more important as compared to the family. हर एक लड़के के, हर एक लड़की के वहाँ पर मित्र होते हैं, वो सामान्य संस्कृति है। और जैसे ही वयस्क अवस्था में वो आते हैं, अपने मित्रों से उनकी दोस्ती हो जाती है, नए नए युवाओं से उनकी दोस्ती हो जाती है, तब उनको लगता है हमें परिवार की आवश्यकता नहीं, बल्कि परिवार से उनकी व्यक्तिगत या निजी जीवन में हस्तक्षेप का वो अनुभव करते हैं, आभास होता है, इसलिए परिवार को से अलग हो जाते हैं। तो उनकी सामान्य संस्कृति वो है और हमारे समाज की सामान्य संस्कृति अलग है। और इसी सामान्य संस्कृति से हमारी राजनीतिक संस्कृति का भी निर्माण होता है। जैसे हमने कहा, सीनियर सिटीजन्स को हम बहुत वैल्यू देते हैं। हमारे माता पिता चाहे कितने वृद्ध क्यों ना हो जाएं, वो हमारे घर में रहेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे, हम उनका देखरेख करेंगे। ये हमारी सामान्य संस्कृति है और इसीलिए ही आवर पॉलिटिकल सिस्टम गिव्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू आवर सीनियर सिटीजन्स। वो बात दूसरी है कि उतना हम वास्तव में उतनी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लेकिन कम से कम हमारी संस्कृति में तो बहुत कुछ है। लेकिन पाश्चात्य देशों में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, व्हाट हैपेंस टू देम ड्यूरिंग देयर ओल्ड एजेस? दे आर एडमिटेड टू द समथिंग लाइक ऑर्फनेजेस। जैसे अनाथालय नहीं होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको अनाथालय में डाल दिया जाता है, उसी तरह से जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वृद्ध होते हैं पाश्चात्य देशों में, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, वहाँ पर अधिकांश सीनियर सिटीजन्स को वो लोग एल्डरली, आप कह रहे केयर सेंटर्स में, वहाँ उनको छोड़ आते हैं। वहाँ उनकी सेवा, उनका लुक आफ्टर, वो जो गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं या जो प्राइवेट एजेंसीज होती, वो उनकी देखरेख करते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जनरल कल्चर ऑफ आवर कंट्री एंड द कंट्रीज़ ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ एंड अमेरिका। इससे राजनीतिक संस्कृति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगला जो है राजनीतिक संस्कृति पर प्रभाव डालने वाला जो फैक्टर है, दैट इज़ द सोशल इकोनॉमिक सेटअप ऑफ अ सोसाइटी। द सोशल इकोनॉमिक पैटर्न और द सोशल इकोनॉमिक सेटअप ऑफ अ सोसाइटी। एक समाज में की जो सामाजिक आर्थिक संरचना होगी, उसी आधार पर राजनीतिक संस्कृति का भी निर्माण होगा। कहने का तात्पर्य है कि समाज की सामाजिक और आर्थिक जो संरचनाएं हैं या परिस्थितियां हैं, वो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान निभाती हैं। देखिए इसका कैसे हम देखते हैं, इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं। हाउ डू वी जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट? जितना ज़्यादा डिस्पैरिटी होगी समाज में बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स, समाज में जितना अधिक डिस्पैरिटी होगी, गरीब और अमीरों में, निर्धन वर्ग में और संपन्न वर्गों में जितना ज़्यादा दूरियां होंगी, जितनी ज़्यादा गहराई होगी, उतना ही ज़्यादा हमें राजनीतिक संस्कृति में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। We will get to see that the political culture is very much affected by the quantum of disparity that prevails between the haves and the have-nots. जितना कम से कम ये दूरियां होंगी हैव और हैव नॉट्स में, संपन्न और निर्धन वर्ग में, उतना ही सशक्त राजनीतिक संस्कृति होगी, उतना ही कम आंतरिक विरोध होगा राजनीतिक संस्कृति में। हमारे देश की जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें हम देखते हैं बहुत ज़्यादा उसमें डिस्पैरिटी है। बिकॉज आवर पॉलिटिकल कल्चर, अब हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो गई है, संस्कृति कैसी हो गई है, हम लोग मानते हैं दोज हु आर मनीड, दोज हु हैव मनी विद देम,
they have the means, they have the power to buy the system or to influence the system or to get entry into the political system, and therefore they are at a position of advantage. And therefore we say that the kind of political culture is something tilted or oriented towards those moneyed people, those wealthy people, towards those prosperous people. इसलिए जितना ज़्यादा इस प्रकार का समाज होगा जहाँ दूरियाँ ज़्यादा होंगी आर्थिक आधार पर, उतना ही ज़्यादा विषमता हम राजनीतिक संस्कृति में भी देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था में भी देखेंगे। वो राजनीतिक संस्कृति हम कहेंगे मिश्रित राजनीतिक संस्कृति है, लेकिन कहने के लिए तो मिश्रित है, लेकिन वास्तव में वो जो धनाढ्य वर्ग है, जो संपन्न वर्ग है, उसके लिए बहुत लाभकारी ये संस्कृति हो जाती है, क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता है ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम में जाने के लिए। जबकि जो पाश्चात्य देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, वहाँ पर इस प्रकार की डिस्पैरिटी यानी सामाजिक आर्थिक जो विषमता है वो कम से कम देखने को मिलती है। एटलीस्ट दे हैव बीन सक्सेसफुल इन सो फार एज द डिस्पैरिटी is concerned in their social and economic structures. They have been able to cover it up to a large extent. तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये सामाजिक आर्थिक संरचना भी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने में बड़ा योगदान देती है। The next factor is that influence of the political culture is the religious ideology, is a religious ideology, or you can say the ideology. दोनों को अच्छा हम अलग कर दें, दोनों का अलग अलग रोल है। फर्स्ट लेट अस डिस्कस आइडियोलॉजी। जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी दैट अ सोसाइटी हैज़ दैट गोज इनटू द मेकिंग ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ दैट कंट्री। जैसे अभी हमने आपको बताया, भारत में एक इस प्रकार की विचारधारा रही है, इस प्रकार का दर्शन रहा है, इस प्रकार की फिलॉसफी रही है वसुधैव कुटुंबकम की, अतिथि देवो भव की, सत्यमेव जयते की। वी हैव सो मेनी glorious sayings in our country, and all these things, all these value based things could be derived, could be searched out of the, could be found out of our ancient past. ये सारी जितने भी महान दार्शनिक जो व्यवस्थाएं थीं या जो विचारधारा थी हमारे पुरातन व्यवस्था के एक अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे, तो हमारी विचारधारा थी, और इस विचारधारा को भारत आज भी आगे लेकर चल रहा है। और इसी वजह से हमारी राजनीतिक संस्कृति में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। विचारधारा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नो एज कंट्रास्ट टू दिस थिंग, लेट्स सी द जर्मन आइडियोलॉजी। जो हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी, नाजिज्म की थी, नाजीवाद की थी। मसोलिनी जो इटली का शासक था, तानाशाह था मसोलिनी, उसका फांसीवादी सिद्धांत था। और देखिए उन्होंने जिस प्रकार की विचारधारा को प्रश्रय दिया, उसी प्रकार का समाज बना, उसी प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बनी, उसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का भी निर्माण हुआ। राजनीतिक संस्कृति कैसी बनी, पॉलिटिकल कल्चर कैसा बना? वेरी एग्रेसिव पॉलिटिकल कल्चर, बिकॉज हिटलर वॉज always believed in aggression. Mussolini always believed in aggression, and therefore he had specifically instructed his subordinates never to be soft with the enemy or even with common people. कम से कम शत्रुओं के साथ तो तुम बिल्कुल मतलब हल्के ना होना, कहने का तात्पर्य बिल्कुल सॉफ्ट ना होना, बिल्कुल एग्रेसिव पोस्चर में रहना। और जो आपके लिए नए लोग हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं दूसरे देश के जो लोग हैं, उनसे भी आप बहुत नरमी से बात ना करिए। तो आप हमेशा एग्रेशन रहना चाहिए। इसीलिए उनका जो राजनीतिक संस्कृति जो निर्माण हुई, बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिकल कल्चर का निर्माण हुआ, और उसी के चलते ही यू नो इट वेरी वेल, अराउंड 20 लाख ज्यूज़ वर डन टू दैट। लगभग 20 लाख यहूदियों को निर्ममता पूर्वक मार दिया गया, और साथ साथ अन्य अल्पसंख्यक वर्गों को भी हिटलर के द्वारा, और मसोलिनी ने भी ऐसा ही किया। तो इसलिए आइडियोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल which goes into the making of a political culture. And the last one is what we call it as religion. Religion अर्थात धर्म। हमारी जो धार्मिक मूल्य हैं, धार्मिक आस्था है,
विश्वास हैं, वो भी हमारी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा होती हैं। हमने तो बार बार भारत के संदर्भ में इसीलिए आपको एग्जाम्पल दिया। हमारे ये कहा गया है, प्राचीन भारत में कहा गया था, धर्मशास्त्रों में कहा गया था कि प्रजा के हित में ही शासक का हित है, प्रजा के हित में ही शासक का हित है। और जो चीज़ें प्रजा के हित में नहीं है, शासक को उससे दूर रहना चाहिए। और यदि फिर भी शासक प्रजा विरोधी कार्यों में उत्सुकता दिखाता है तो उस राजा को अपदस्थ करने में जरा भी विलंब नहीं करना चाहिए। ये कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है। प्रजा के हित में ही शासक का ही सुख है, हित है, और प्रजा को रास्ता दिखाना, अच्छा मार्ग दिखाना, ये अच्छे शासक का कर्तव्य है। तो ये धार्मिक मूल्य भी हैं, हमारी नैतिक मूल्य भी हैं, और हमारे धार्मिक आस्थाएं हमारी राजनीतिक संस्कृति को और पुष्ट करती हैं। सबके साथ मिलजुल कर रहना, पूरी दुनिया को परिवार मानना, ये हमारी धार्मिक आस्था भी है, हमारे नैतिक मूल्य भी है। इसलिए जहाँ जहाँ धर्म का बहुत बड़ा योगदान है, या धर्म जहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, आज के समय में खाड़ी देशों में भी धर्म प्रधान देश या थियोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, और वो अपने देश की राजनीतिक संस्कृति को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, और उसी आधार पर उनकी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण भी किया गया है। सो द रिलीजन in today's time, religion is still playing a very important role, particularly in the Gulf countries, in the Middle East, where most of the governments, they are theocratic governments which derive their power and their strength from their religion. तो इसलिए राजनीतिक संस्कृति में धार्मिक विषयों का या धार्मिक आस्थाओं का, धार्मिक मूल्यों को, धार्मिक सिद्धांतों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि राजनीतिक संस्कृति के जब निर्माण के बारे में बात आती है तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, सारे जो तत्व हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इसीलिए हमने कहा कि दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। फैक्टर्स बहुत सारे, राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में तो और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लोगों की वेज ऑफ लिविंग, पीपल्स चॉइसेस, पीपल्स प्रेफरेंसेस, दे लाइक्स और डिसलाइक्स, बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं। लेकिन फाउंडेशन के रूप में, आधार के रूप में तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिलकर राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती हैं। तो ये आज का एक महत्वपूर्ण विषय था, और I hope that you must have listened to my lecture carefully, and you will follow this lecture and you will do the required supplementation work by going through some good book. आज के लेक्चर को आपने सुना, मुझे पूरा आशा है, मुझे पूरा विश्वास है आपने मेरे लेक्चर को सुना होगा, इसको फॉलो किया होगा, और इस लेक्चर को सप्लीमेंट कर लीजिएगा। जो भी आप किताब पढ़ रहे हो, कोई अच्छी किताब अवश्य पढ़ रहे होंगे, उस किताब के माध्यम से इसको सप्लीमेंट अवश्य कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड फॉर बीइंग विद मी थ्रू आउट द क्लास। और अगले लेक्चर में हम इसके आगे और आपसे बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स सो मच।